Hello guys, welcome to my channel and today I'm here to make chapter 6 of standard 10th easier for you, and this will help you to prepare for the last moment like before exam. So today I will be covering these questions which are there in the exercise part. So let's start up with the first question, that is, the kidneys in the human beings are a part of system 4. And the answer for this question is excretion. So kidneys are the kidneys in human beings are the part of system for excretion. Kidneys किसके लिए किसके part है? It is a part of excretion. Moving on to the next question. The xylem in the plants are responsible for the xylem की responsibility क्या है? It is responsible for transport of water, and hence the answer is A. It is responsible for transport of water. Moving on to the third question. The autotropic mode of nutrition requires, क्या लगता है autotropic mode of nutrition के लिए? क्या लगता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लगता है, क्रोमोफिल लगता है, सनलाइट लगता है, या ये सारी चीजें लगती है? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर ऑल ऑफ द अबव. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी लगता है, क्लोरोफिल भी लगता है, एंड सनलाइट ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the next question? The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in, कहाँ पे होता है ये breakdown? It takes place in mitochondria. So the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in mitochondria. Now let's move on to the big questions, which I'll have prepared notes and you can refer to the notes at this last moment. I have collected the notes so that it will be easier for you. Now, moving on to the question. How are fats digested in our bodies? Where does this process takes place? Now, first let's try to understand the question. Fats digest कैसे होते हैं bodies में and ये process कहाँ पे होता है? So, the small intestine is a place for complete digestion of carbohydrates, fats and proteins. It receives the secretions of liver and pancreas for this purpose. इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ पे होता है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कंप्लीट डाइजेशन करता है ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, जिसके लिए वो सीक्रेशंस कहाँ से रिसीव करता है? इट रिसीव्स द सीक्रेशंस फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियास. नाउ कैसे होता है? द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज यूजुअली एसिडिक इन नेचर एंड it has to be made alkaline so that pancreatic enzymes can act on it. अभी जो भी हम फूड खाते हैं यूजुअली दैट इज एसिडिक, and acidic food cannot, like the pancreatic enzymes cannot act on acidic food, therefore it has to made alkaline. तो acidic मतलब एसिड वाले को अल्कलाइन करना पड़ता है, and the bile juices produced in the liver accomplish this process. Then fats are usually present in the intestine in the form of large globules. लार्ज ग्लोब्यूल्स मतलब बड़े बड़े पीसेस के इसमें फैट्स आर प्रेजेंट विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन इट, जिसकी वजह से एंजाइम्स डायरेक्टली एक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स. सो बाइल सॉल्ट क्या करता है? इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग इट डाउन इनटू द स्मॉलर पीस, एंड देन अगेन the pancreas help in secreting the pancreatic juice, which contains the enzymes like trypsin for digesting the proteins and lipase for breaking down the emulsifying fats. Then the fourth point is the walls of small intestine contains glands. Walls जो होते हैं small intestine के, उसमें glands होते हैं जो intestinal juice already secrete करते हैं. Now the enzymes जो यहाँ पे present होते हैं वो क्या करते हैं? Proteins को amino acids में convert करते हैं, complex carbohydrates को glucose में convert करते हैं, and fats को fatty acids and glycerol में convert करते हैं. And this is how the fats are digested. So डिड यू गेट द आंसर? ये कहाँ पे प्रोसेस होता है? इट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन किस किस का कम डाइजेशन करता है? इट डज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. कैसे?
सिक्रीशंस जो रिसीव होते हैं लीवर एंड पैनक्रिया से वो यूज करके. So the first point, what will be the first point? It takes place in the small intestine is a place for the complete digestion of carbohydrates, fats, and proteins, and it receives the secretion. Now the second point, the food which comes is usually acidic in nature, which needs to be made to alkaline, and after that the pancreatic enzymes will act on it. फिर bile juice प्रोड्यूस होगा liver में ये प्रोसेस फॉलो कंप्लीट करने के लिए. Now the fats whichever are present, those are in forms of large globules, जिसके वजह से एंजाइम्स उस पर एक्ट नहीं कर सकते. तो बाइल सॉल्ट उसे हेल्प करता है स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करने के लिए, एंड देन पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हेल्प्स इन सीक्रेटिंग द पैनक्रियाटिक जूस which contains enzymes like trypsin for digesting the proteins and lipase for breaking down the emulsifying fat. फिर फोर्थ पॉइंट क्या आता है? अभी वॉल्स, जो वॉल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसमें ग्लैंड्स होते हैं जो इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करता है, एंड देन द फाइनल ब्रेकडाउन हैपेंस वेयर द एंजाइम्स फाइनली कन्वर्ट द proteins to amino acids, complex carbohydrates to glucose, and finally the fats into fatty acids and glycerols. So that is how our answer was. It was very easy. You just need to divide it into different points and understand the step. तो फर्स्ट पॉइंट में क्या याद रखोगे आप? दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू ऑल नीड टू रिमेंबर इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये क्या क्या करता है? इट इट इज अ प्लेस वेयर दिस कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस. सेकेंड इज द फूड विच वी ईट, इट इज एसिडिक, जिसको अल्कलाइन में करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स उस पर एक्ट करते हैं एंड बाइल जूस प्रोड्यूस करते हैं. फिर आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज अबाउट द फैट्स. फैट्स बड़े होते हैं, मोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं, तो दैट कैन नॉट बी लाइक एंजाइम्स उस पर एक्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसे ब्रेक डाउन करना है ज़रूरी. तो ब्रेक डाउन करने के बाद फिर पैनक्रियास हेल्प करते हैं जूस सीक्रेट करने के लिए, एंड एंजाइम्स होते हैं उसमें ट्रिप्सिन एंड डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स, एंड लिपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइंग फैट्स. फिर आते हैं वॉल्स ऑफ ग्लोब, वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. इसमें ऑलरेडी ग्लैंड्स कंटेन होते हैं. वॉल्स में क्या होता है? इट कंटेन्स ग्लैंड जो इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करते हैं, एंड वहाँ पे फाइनल प्रोसेस होता है जहाँ पे प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, एंड फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया जाता है. आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू दिस आंसर. एंड ये जैसे जैसे मैंने बताया, ट्राई टू memorize it in the same way and try to remember it in points. I'll also highlight the points for this. अभी ये देखो, ये जो मैंने हाईलाइट किया उसमें क्या क्या याद करना है. एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होता है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स टेक्स प्लेस. सेकेंड पॉइंट इज फूड. फूड एसिडिक होता है जिसे अल्कलाइन में कन्वर्ट करना इज नेसेसरी सो दैट पैनक्रेटिक एंजाइम्स कैन एक्ट एंड बाइल जूस प्रोड्यूस हो सकता है. थर्ड पॉइंट क्या है? फैट्स लार्ज ग्लोब्यूल्स में होते हैं तो डिफिकल्ट हो जाता है एंजाइम के लिए, तो बाइल सॉल्ट क्या करता है? उसे ब्रेक करता है, एंड पैनक्रियास हेल्प करते हैं जूस सीक्रेट करने के लिए, जिसमें कौन से एंजाइम्स होते हैं? ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लिपेज फॉर ब्रेकिंग इट डाउन. फिर आते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करता है, एंड जिसके वजह से फाइनल ब्रेकडाउन होता है जहाँ पे प्रोटीन टू अमाइनो एसिड, carbohydrates into glucose, and finally the fats into fats and fatty acids and
glycerol. Now let's move on to the next question. What is the next question? What is the role of saliva in the digestion of food? Digestion of food में saliva क्या करेगा? First very important point which we got to know is wasn't this answer itself. क्या है? Food we intake is complex in nature. It is not simple in nature, it is complex, and if it is absorbed from alimentary canal, then it has to be broken into small molecules. And this process is mainly done with the help of biological catalyst called enzymes. The saliva contains enzymes called salivary amylase that breaks down the starch, which is a complex molecule, to give sugar. And the food is mixed thoroughly with the saliva and moved around the mouth while chewing the muscular tongue. And hence, saliva plays the pivotal in the digestion and the absorption of food. तो इसमें हमें क्या समझा? आई ट्राई टू फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू इन हिंदी. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि फूड एक कॉम्प्लेक्स नेचर में कॉम्प्लेक्स होता है. तो अगर वो एब्जॉर्ब करना है फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल तो वो बड़े बड़े पीस में ऑब्जॉर्व नहीं होगा. इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस. तो स्मॉल पीसेस में कैसे ब्रोक होगा? एंजाइम्स के हेल्प से. तो एंजाइम्स कहाँ से आएंगे? सलाइवा से. सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जिसे बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जो ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च को शुगर में. एंड देन फूड क्या होता है? सलाइवे के साथ मिक्स हो जाता है. एंड देन मस्क्यूलर जो अपना टंग है वो हेल्प करता है चिविंग के लिए, एंड दैट इज द रीजन सलाइवा प्लेज द मेन रोल इन. इसमें आपको क्या-क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि फूड एक कॉम्प्लेक्स है नेचर में. सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, एब्जॉर्ब करने के लिए उसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना इज़ नेसेसरी, जो हेल्प करता है एंजाइम्स. एंड थर्ड पॉइंट आपको याद करना है कि एंजाइम सलाइवरी एंजाइम अमाइलेज होता है जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को शुगर में, एंड द फूड इज़ देन मिक्स्ड विथ सलाइवा and moved around the mouth while chewing, and that is the reason saliva plays the important role. बहुत ही सिंपल आंसर है. बस आपको ये याद रखना है फूड कॉम्प्लेक्स होता है, वो बड़े पीस में होता है, तो वो ऑब्वियसली ऑब्जॉर्ब नहीं होता. वी नीड टू लाइक उसको छोटे पीस में करना ज़रूरी है. तो उसके लिए एक एंजाइम लगेगा. उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज, जो ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च को शुगर में, एंड देन फूड मिक्स हो जाएगा सलाइवा के साथ, जो च्यूइंग करते वक्त मिक्स हो जाता है, एंड दैट इज द रीजन वो डाइजेशन में सलाइवा हेल्प करेगा. आई होप दिस वाज इजियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? What are the necessary conditions for atropic nutrition and its byproducts? तो नेसेसरी कंडीशंस क्या होते हैं एट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए? पॉइंट वाइज आंसर करते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है? द एनर्जी एंड द कार्बन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स इज obtained by the process of photosynthesis. जो एट्रोपिक एट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है या फिर एट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, वो एनर्जी कहाँ से लेगा? फोटोसिंथेसिस से. वो डिफाइंड कैसे? इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच एट्रोप्स क्या करेगा? इट टेक्स द सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड सराउंडिंग से लेगा एंड कन्वर्ट देम एंड स्टोर इनटू द एनर्जी. दिस सब्सटेंस इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. The what is the main purpose of carbohydrates? Carbohydrates का main purpose है energy provide करना, and carbohydrates पूरी तरह से immediately utilize नहीं होते, वो store हो जाते हैं starch के form में, जो internal energy reserve करता है. And this stored energy can be used by plant whenever it is required. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर एट्रोपिक न्यूट्रिशंस एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स. कंडीशंस कौन से लगते हैं एट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए, और उसके बाय प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स कौन से लगते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला हम लोग ने कि जो एनर्जी एंड कार्बन ये उनको इनके बाय प्रोडक्ट्स है एट्रोपिक ऑर्गेनिज्म के, वो कहाँ से आएंगे? फोटोसिंथेसिस से. वो प्रोसेस कैसे डिफाइन किया है? वो क्या करते हैं, बाहर से एट्रोप्स जो होते हैं सब्सटेंस बाहर से लेते हैं एंड फिर उसे स्टोर करते हैं किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में. फिर वो सब्सटेंस जो है वो
इट इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड उसे कन्वर्ट करते कार्बोहाइड्रेट्स में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। एंड फिर द मेन पर्पस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का मेन जो पर्पस है वो क्या होता है, टू प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट यूटिलाइज इमीडिएटली, इमीडिएटली एक ही साथ यूज नहीं करते, वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, जो इंटरनल रिजर्वायर की तरह एक्ट करता है। एंड जब भी उनको एनर्जी लगेगी वो उसी तरह से यूज करते हैं। सो दिस वॉज ऑल्सो द इजी आंसर। उसमें क्या क्या याद करना है आपको, फर्स्ट थिंग तो ये याद करना है कि द एनर्जी एंड रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या है। ये जो दो रिक्वायरमेंट्स है, दैट इज एनर्जी एंड कार्बन रिक्वायरमेंट्स, वो कहाँ से आते हैं, फोटोसिंथेसिस से आते हैं। हाँ, फोटोसिंथेसिस से आते हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, इन्होंने यहाँ पे प्रोसेस डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया है, एट्रॉप्स क्या करते हैं, बाहर से सब्सटेंस लेते हैं, इट टेक्स इन द सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर ये एनर्जी जो है किस फॉर्म में ली जाती है, इट इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में लेके दैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। किसके प्रेजेंस में, प्लांट्स है तो क्या यूज करेंगे, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। एंड कार्बन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन का पर्पस क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, इट इज टू प्रोवाइड एनर्जी। तो एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेगा, वो एक ही साथ थोड़ी ना दे देगा, जितना भी बनाया है वो क्या करेगा, स्टोर करेगा, और जब भी प्लांट को लगेगा इट विल गिव इट टू देम। So these are the points which will help to memorize this answer. This was also a very easy answer. You just need to understand the logic and the process. क्या process है कि ये जो है एनर्जी एंड कार्बन रिक्वायरमेंट्स है वो कहाँ से, फोटोसिंथेसिस से मिलते हैं। एंड उसका प्रोसेस कैसे करते हैं, वो सब्सटेंस ले लेते हैं बाहर से, स्टोर कर देते हैं। अभी स्टोर कैसे करेंगे, सब्सटेंस पहले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो कन्वर्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के। फिर कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम क्या है, एनर्जी देना। तो वो एनर्जी कैसे करेगा, वो स्टोर करेगा, और जब भी प्लांट को लगेगा तभी वो एनर्जी देते जाएगा। दिस वाज आवर आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the difference between aerobic and anaerobic respirations? Name some organisms that use the aerobic mode of respiration. सॉरी, एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। अभी फर्स्ट समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वो रेस्पिरेशन, वो प्रोसेस इट विच इज डन इन प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो होता है इसे बोलते हैं एरोबिक। एंड एनारोबिक क्या होता है, दैट इज इन एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। फिर एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, दैट मीन्स वो क्या करेगा, उसके प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, क्योंकि इसी से तो मिलेगा उसे ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट स्टेप क्या करेगा, वो ग्लाइकोलिसिस करेगा, जहाँ पे वो इट टेक्स इन द साइटोप्लाज्म, व्हाइल द नेक्स्ट स्टेप इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, एंड नेक्स्ट स्टेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये पॉइंट सबको रिमेंबर करने के लिए इजी पड़ेंगे। You also make an habit like whenever you're studying any answer now, remember the points or the words which will help you all remember the answers. फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये जो प्रोसेस होता है ना, टेक्स प्लेस इन ऑल हायर ऑर्गेनिजम्स, एंड दिस इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। इसमें जो पूरा ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलिसिस जो बोलते हैं वो प्रोसेस लेते हैं। Now, what was the first important point? Aerobic respirations किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो उसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में,
और नेक्स्ट स्टेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये प्रोसेस जो है सारे हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है, एंड इन दिस कंप्लीट process oxidation of glucose takes place. While for anaerobics, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था यहाँ का, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। एनारोबिक में क्या होगा, इट विल टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो वहां पे दूसरा क्या एक्ट करेगा, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिटिल एनर्जी। फिर ये जो प्रोसेस है ये भी सेम, ये जो थर्ड पॉइंट है ये कंप्लीटली सेम है। उसका फर्स्ट स्टेप होगा साइटोप्लाज्म में, सेकंड स्टेप होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी ये जो थर्ड वाला स्टेप था उसमें क्या था, ये सारे हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है। यहाँ पे क्या बोला है, दिस इज द प्रोसेस वेयर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी पूछे गए थे, तो दिस आर द एग्जाम्पल्स, विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स, yeast, some species, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स। तो ये चार पॉइंट्स हम लोग को बस याद रखने। फर्स्ट वॉज एनारोब, फर्स्ट या एक साइड में लिखो एरोबिक, दूसरे साइड में लिखो एनारोबिक। इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यहाँ पे प्रोडक्ट्स है इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिटिल एनर्जी। ये जो थर्ड पॉइंट है दैट इज कंप्लीटली सेम। इसका जो एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन है वो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट प्लेस होता है साइटोप्लाज्म में, एंड नेक्स्ट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। सिमिलरली फॉर एनारोबिक, first takes place in cytoplasm, second takes place in mitochondria. Now the third process, what it now in this the complete, it is a complete oxidation process of glucose. While this is income, this is where the glucose molecules are incompletely broken down. एंड इसके एग्जाम्पल्स ये कहाँ पे होता है, ये सारे हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है, ये सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स लाइक टेपवर्म. Wasn't it easy? This was very easy. Just make a note of these points which are highlighted in yellow. Now let's move on to the next question. How are the alveoli designed to maximize the U exchange of gases? The gases जो है maximum exchange कैसे करेंगे? This is the answer. What is the main important part of the body for this? Lung is the important part of body, and the passage inside the lung divides into smaller and smaller tubes which finally terminate into the balloon like structure called alveoli. तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, व्हाट इज एल्वियोली? जो लंग्स होते हैं वो उसके जो ट्यूब्स है वो छोटे 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 हो जाते हैं, एंड एट द एंड देयर इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज alveoli. The next point is the alveoli provides a surface where the exchange of gases takes place. The walls of alveoli usually contains extensive network of blood cells. We know that when we breathe in, we lift our ribs, flatten our diaphragm and chest cavity becomes larger. जब हम ब्रीथ करते तब हम क्या करते, रिब्स लिफ्ट करते, डायफ्राम को फ्लैटन करते हैं एंड चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर. सो व्हाट वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, लंग. लंग इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. फिर उस लंग्स के अंदर एक ट्यूब्स होते हैं जो छोटे छोटे होके टर्न्स आउट इनटू विच टर्न्स आउट इनटू एन एल्वियोली. एल्वियोली जो होते हैं, इट अगेन हैज अ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड सेल्स. Then, because of this action, the air is sucked into lungs and fill the expanded alveoli. फिर क्या होता है, the blood brings the essential carbon dioxide from the rest of the body, supplied to alveoli, and the oxygen in the alveoli air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to transport it to all cells of the body. Now, during the normal breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residential volume of air. So, there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and carbon dioxide to be released. So, I'll explain you the process again. First point what we learned was lung is the important part of body.
जो भी इसका प्रोसेस होता है दैट हैपेंस इनटू लंग्स. फिर नेक्स्ट कम्स अप alveoli. Alveoli क्या है? These the lungs divides into small tubes and that finally terminate into structure called alveoli. Alveoli के पास क्या होता है? It contains an extensive network of blood cells. ये स्ट्रक्चर याद हो गया? क्या आएगा? lungs divide हो जाएंगे. That will have alveoli. Alveoli will again have an extensive network of blood cells. अभी मूव करते हैं ब्रीदिंग वाले इस पे. ब्रीथ करते वक्त क्या करते हैं हम रिब्स को लिफ्ट करते हैं, डायफ्राम को फ्लैटन करते हैं एंड चेस्ट कैविटी, जिसके वजह से चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है. होता क्या है इस वक्त? एयर जब हम सक कर लेते हैं लंग्स के अंदर, तो एयर जब सक करते हैं वो एल्वियोली एक्सपांड हो जाता है. देन द ब्लड ब्रिंग्स द एसेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लेस्ट. बाकी सारी जगह से, रेस्ट ऑफ द बॉडी से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है एंड एल्वियोली की सप्लाई करता है. देन द ऑक्सीजन जो एल्वियर एयर में ऑक्सीजन जो टेकन होता है बाय द ब्लड इन द एल्वियोरल ब्लड सेल्स टू बी ट्रांसपोर्ट, जो ऑक्सीजन है वो क्या करना पड़ता है? ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है टू द अदर सेल्स ऑफ द बॉडी. एंड ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग साइकिल, जब एयर हम लोग अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडेंशियल वॉल्यूम ऑफ एयर, जिसके वजह से बहुत ही सफिशिएंट टाइम होता है जहाँ पे ऑक्सीजन कैन बी ऑब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी released. Did you all get this answer? What were the points? Let us repeat again. फर्स्ट था लंग, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो डिवाइड होकर एल्वियोली पे आता है. एल्वियोली अगेन कंटेन्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड सेल्स. फिर हम लोग ने देखा ब्रीदिंग वाला प्रोसेस. ब्रीदिंग वाले प्रोसेस में हम लोग लिफ्ट करते हैं, रिब को लिफ्ट करते हैं, फ्लैटन करते हैं डायफ्राम को, चेस्ट कैविटी, जिसके वजह से बिकम्स लार्जर. एंड एक्शन में क्या होता है? जब हम सक करते हैं एयर को, तभी एल्वियोली में एक्सपांड हो जाता है. तो क्या होता है? सब बाकी सारी जगह से जो ब्लड होता है वो एल्वियोली को सप्लाई हो जाता है एंड ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है इट इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड सेल्स, जो ट्रांसपोर्ट होता है बाकी सारे सेल्स को. तो नॉर्मल ब्रीथिंग के वक्त क्या होता है? जो जब हम एयर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, तब और लंग्स के पास बहुत ही सफिशिएंट टाइम होता है, जिसके वजह से जो ऑक्सीजन उसके पास था वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है. डिड यू गेट दिस आंसर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This is a very small answer. Let's do it quickly. What would be the consequences of deficiency of hemoglobins in our body? अगर hemoglobins की deficiency होगी तो क्या होगा? Hemoglobin होता क्या है पहले? It is a protein which is responsible for transportation of oxygen. तो सबसे important जो काम है वो hemoglobin करता है. अगर इसकी deficiency होगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा एंड कैन अफेक्ट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी, जिसके वजह से क्या होगा? बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाएगा एंड दिस कैन लीड टू अनेमिया. वेरी सिंपल आंसर. व्हाट वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी नीड टू एक्सप्लेन इन दिस इज, फर्स्ट हमेशा ये एक्सप्लेन करके वो होता क्या है, वो उसका काम क्या है. इट्स मेन इट इज़ अ प्रोटीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. अगर वो कम होगा तो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन जो कैरिंग आरबीसी होते हैं वो लेस सप्लाई होंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाएगा एंड ऑक्सीजन कम होने की वजह से क्या होता है? अनीमिया होता है. दिस वॉज वेरी क्विक. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Describe double circulation of blood in the human beings and why is it necessary? Now क्या बोला उन्होंने? डिस्क्राइब करनी डबल सर्कुलेशन, तो क्या वो एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे जाएंगे. व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? मीन्स इन अ सिंगल साइकिल ब्लड गोज ट्वाइस इन अ हार्ट. डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन जो ब्लड होता है वो दो बार हार्ट में जाता है एंड इट हेल्प्स इन सेपरेटिंग द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर. वेरी सिंपल. नाउ डबल सर्कुलेशन में होता क्या है? इट इंक्लूड्स टू सर्कुलेशन, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? जहाँ पे द राइट वेंट्रिकल पंप्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स वेयर इट इज ऑक्सीजनेटेड. राइट पंप वेंट्रिकल क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड पंप करेगा ब्लड और यहाँ पे ऑक्सीजनेट कर देगा
एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम से, from there it is pumped into the left ventricle and finally goes into the aorta for the systematic circulation. वो क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां पे ऑक्सीजनेट करके वापस लेफ्ट एट्रियम को भेज देगा, फिर यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से वो भेजेगा लेफ्ट वेंट्रिकल को एंड फाइनली वो जाएगा अरोटा में फॉर द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वे बाकी सारे बॉडी पार्ट्स को जाएगा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वेने कावा से इट विल रीच टू राइट एट्रियम एंड राइट एट्रियम में वो ट्रांसफर करेगा इनटू द राइट वेंट्रिकल, फिर वापस ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा। क्या क्या किया पल्मोनरी में, वो राइट वेंट्रिकल से उसने ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, ऑक्सीजनेट किया, लेफ्ट एट्रियम के पास भेजा, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भेजा एंड देन अरोटा के पास भेजा ये वाले सर्कुलेशन के लिए। सिस्टमिक में क्या होगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी सिस्टमिक के पास अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो क्या करेगा, बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडीज को देगा, कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, एंड फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बाकी पार्ट से आ जाता है वो वेने कावा से जाएगा राइट एट्रियम के पास, फिर ये राइट एट्रियम क्या करेगा, वापस राइट वेंट्रिकल के पास भेजेगा एंड दिस प्रोसेस विल अगेन कंटिन्यू। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर टू द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। कैसे होता है, फर्स्ट जाइलम में कैसे होता है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाइल फ्लोएम क्या करता है, ये सिर्फ फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। Xylem में क्या होता है, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स, और यहाँ पे फूड क्या करेगा, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होगा। दिस वाज वेरी सिंपल। व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे जाइलम विल हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये फूड ट्रांसपोर्टेशन में करेगा। ये कैसे करेगा, रूट से बाकी पार्ट्स को देगा एंड फूड इज ट्रांसमिटेड बोथ फ्रॉम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। What is the last question? Compare the functioning of alveoli in lungs and nephrons in kidneys with respect to structure and functioning. तो फर्स्ट हम स्ट्रक्चर वाला देखते हैं, एल्वियोली एंड नेफ्रॉन का करना है। तो एल्वियोली का ये, जैसे में हम लोग ने पहले आंसर में देखा था, वो क्या होता है, एक टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लंग में प्रेजेंट होता है, वाइल नेफ्रॉन कहाँ पे होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर किडनी में होता है। इसके वॉल्स कैसे होते हैं, इट इज the walls are one cell thick and it contains extensive network of blood capillaries। और यहाँ पे क्या होता है, ग्लोबुलरस होता है, वोमेन्स कैप्सूल होता है और लॉन्ग रीनल ट्यूब होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, हम लोग ने पढ़ा, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज करवाता है बिटवीन द ब्लड ऑफ कैपिलरीज दैट सराउंड्स alveoli एंड gases present in the alveoli। और यहाँ पे वो क्या करता है, जब वो किडनी में ब्लड जाता है तो ब्लड, यहाँ पे ब्लड एंटर करके तो जो वेस्ट होता है दैट इज करेक्ट कलेक्टेड इन द कलेक्टिंग डक्ट एंड दिस इज अ बेसिक फंक्शन फिल्ट्रेशन यूनिट। ये क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। दिस वाज वेरी सिंपल, देन दिस इवन लास्ट को आंसर वाज वेरी सिंपल। एल्वियोली का क्या हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा था कि ये टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बस हमें याद रखना है कि यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो किडनी में होते हैं। इसके वॉल्स कहते कैसे होते हैं, थिक होते हैं और उसके पास एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है। वेल नेफ्रॉन्स में ग्लोबुलस होता है, बोमेन्स कैप्सूल होता है और रीनल ट्यूब्यूल होता है। अल्वियोली क्या करता है, वो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में हेल्प करता है और ये साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज का है। एंड व्हाट इज नेफ्रॉन, दिस हेल्प्स इन, यहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रस वेस्ट होता है ना, दैट इज कलेक्टेड इन द कलेक्टिंग डक्ट एंड दिस इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट। That's what was our chapter, and in this way we have covered our chapter 6 for standard 10th. I hope guys I was able to make it very easier for you, and if this will even help you in preparation before exams. Thank you so much, guys. So if you're like, please let me know in the comments, and please do like, share, and subscribe my channel.
Thank you so much for being with me, and I hope I was able to make it easier for you. If you feel you want to learn any other chapter, please mention the chapter name in the comment box. Thank you so much. Please do like, share, and subscribe.